Hello everyone. Now today we are going to see our most important topic in our irrigation engineering is that benefit of irrigation. So before we going to see benefit of irrigation, in our previous video we saw scope of irrigation engineering, then necessity of irrigation, irrigation engineering and irrigation. So what is irrigation? First of all, what is irrigation? So it is defined as the process of artificially supplying water to soil for raising crop. And now irrigation engineering. What is irrigation engineering? So it is science dealing with planning, designing, construction, operation and maintenance of various irrigation works. कौन कौन से इंक्लूड हो गए? So construction of dam and reservoir, construction of canal system, construction of headworks, study and design of work in connection with river control, then drainage of waterlogged area and generation of hydroelectric power. So next is necessity of irrigation. So the necessity of irrigation can be summarized as inadequate rainfall, then non-uniform rainfall, growing a number of crops during a year, growing a perennial crops, growing superior crops, increase the yield of crop and insurance against drought. So this is the necessity of irrigation. Now scope of irrigation engineering. So there are broadly the scope of irrigation can be divided into three groups: engineering aspect, agriculture aspect and management aspect. So in engineering aspect there are storage, diversion of water, conveyance of water to the agriculture field, application of water to the agriculture field, then drainage and relieving water logging and development of hydropower, then agriculture aspect and management aspect. So next, our benefit of irrigation. So it is a very most important topic, benefit of irrigation. So various benefit of irrigation are summarized below. So first of increase in crop yield. तो इरिगेशन का बेनिफिट क्या है? तो फर्स्ट हमें क्या है बढ़ाना, इंक्रीज क्रॉप yield. सो ड्यू टू टाइमली एंड कंट्रोल सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप. ठीक है, जैसे कि हमें कोई क्रॉप को yield करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टाइमली एंड कंट्रोल, और टाइम पे हमें पानी देना पड़ेगा एंड कंट्रोल जितना चाहिए उतना ही हमें पानी देना पड़ेगा क्रॉप को. सो ड्यू टू द टाइमली एंड कंट्रोल सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप द yield ऑफ क्रॉप इज इंक्रीज. क्रॉप का जो रेजिंग पीरियड है, ठीक है, जो उसको उगाना है वो क्या करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. सो विद द इंक्रीज इन द क्रॉप yield इट वुड बी पॉसिबल टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट ग्रेन्स. ये अब ये कहाँ पॉसिबल होगा कि हमें क्रॉप को इंक्रीज़ करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि टाइमली एंड कंट्रोल सप्लाई ऑफ वाटर, टाइम पे पानी देना पड़ेगा, ठीक है, एंड जितना पानी चाहिए उतना ही हमें देना पड़ेगा, कंट्रोल में देना पड़ेगा. सो इट इज़ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन. ठीक है, ये जो हमें जो टाइमली एंड कंट्रोल वाटर सप्लाई करेगा तो उसका बेनिफिशियल क्या होगा टू प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट ग्रेन्स. सो नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन. ठीक है, सो फेमाइन यानी कि दुकाल, बराबर, तो हमें दुकाल से उसको बचाना है. कैसे बचाएंगे? सो द प्रोविज़न ऑफ एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन द रीजन एंश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेलियर ऑफ क्रॉप और फेमाइन. ठीक है, कि इरिगेशन क्यों रिक्वायर है, उसकी फैसिलिटी हमें क्यों ज़रूर है, बिकॉज कई बार ड्रॉट आएगा. ड्रॉट यानी कि ज़्यादा बारिश, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉप को
नुकसान होगा, ठीक है, तो उसे हमें बचाना है. सो द प्रोविज़न ऑफ एडेक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन एनी रीजन इंश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेलियर ऑफ क्रॉप from droughts. However, in the region where the irrigation facilities exist, the farmer have to depend only on rain. ऐसे कई रीजन है हमारे कंट्री में जहाँ पे जो फार्मर है वो किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, ओनली फॉर रेन, फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स का ग्रोविंग के लिए. सो द फेलियर ऑफ रेन में रिजल्ट इन फेमाइन. ठीक है, तो क्या होगा, तो कई बार ज़्यादा बारिश की वजह से क्या होगा, क्रॉप के ग्रोविंग में फेलियर आएगा. सो नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप. सो इरिगेशन फैसिलिटीज इनकरेज द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, सुपीरियर क्रॉप्स, जैसे कि जो वीट है, गऊ है, शुगर कैन है, राइस है, कॉटन है, टोबैको है, इट इज़ सुपीरियर क्रॉप. ठीक है, तो इरिगेशन फैसिलिटी इनकरेज कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप. क्या बेनिफिट होगा हमें, जो कैश क्रॉप है उसकी कल्टीवेशन में बेनिफिट रहेगा, जैसे कि वीट, शुगर कैन, राइस, कॉटन एंड टोबैको और ऑयल सीड्स एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग. बराबर है. तो नेक्स्ट कि मिक्स क्रॉपिंग, जैसे कि कई बार एक ही फार्म में हम 2 क्रॉप्स उगाते हैं, ग्रोविंग करते हैं, तो हमें उसको क्या करना है, एलिमिनेट. सो इफ़ इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल इन एन एरिया, द फार्मर हैव अ टेंडेंसी टू अडॉप्ट मिक्स फार्मिंग. कई रीजन में, कई एरिया में क्या होगा कि इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फार्मर क्या करेगा, एक ही बार में 2 क्रॉप को ग्रोविंग करेगा. सो वेयर बाई दे ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम फील्ड. एक ही फील्ड में 2 क्रॉप उगाएगा. ठीक है. द एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग इज दैट इफ द वेदर कंडीशन आर नॉट सुटेबल फॉर वन ऑफ द क्रॉप, इट मे बी सुटेबल फॉर अनदर एंड दस द फार्मर मे गेट एटलीस्ट सम yield फ्रॉम द सेम फील्ड. ठीक है, तो एडवांटेज क्या होगा मिक्स क्रॉपिंग में, कई बार क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, तो 2 क्रॉप में से एक क्रॉप के लिए सूटेबल होगा, लेकिन दूसरे के लिए सूटेबल नहीं होगा. एट दैट टाइम क्या होगा कि कई बार एटलीस्ट फार्मर को वो जो वेदर सूटेबल होगा उस क्रॉप में से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, इन अ सेम फील्ड. ठीक है, बट मिक्स क्रॉपिंग हैज़ अ नंबर ऑफ डिसएडवांटेज. बस देयर इज अ सम नंबर ऑफ डिसएडवांटेज, जैसे कि स्पेशली ड्यू टू द फैक्ट दैट ईच क्रॉप हैज़ अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर अ फील्ड प्रिपरेशन, मैन्यूरिंग एंड वाटरिंग. जैसे कि कई बार 2 क्रॉप को क्या होता है कि कई पर्टिकुलर क्रॉप के लिए पर्टिकुलर क्रॉप को पानी ज़्यादा चाहिए और दूसरे को कम चाहिए, तो एट द टाइम जो उसका मैनेजमेंट करना है वो क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया. सो द अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी हेल्प इन एलिमिनेटिंग द मिक्स क्रॉपिंग. सो इन इरिगेशन फैसिलिटी उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, मिक्स क्रॉपिंग को एलिमिनेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द कंट्री. ठीक है, अब और एक बेनिफिट है इरिगेशन का, क्या है, वेल्थ ऑफ द कंट्री. इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द कंट्री. कंट्री के जो वेल्थ यानी कि जो करेंसी है उसको हमें क्या करना है, बढ़ाना है. ठीक है, द रिवेन्यू इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर. ठीक है, फार्मर के पास से क्या रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, यूटिलाइज. जैसे कि हम कैनाल यूज़ करते हैं तो उसका जो हमें फीस पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को. सो इस इज रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर हु यूटिलाइज इरिगेशन वाटर. दे आर सब्सटेंसेबल इंक्रीज इन रेवेन्यू टू द स्टेट. पर्टिकुलर स्टेट में से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. द रेवेन्यू इज सो कलेक्टेड मे बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू इरिगेशन स्कीम और फॉर अदर डेवलपमेंट वर्क. ये क्या करेगा, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो हमारी
कंट्री में क्या करेगा, जो रेवेन्यू होगा वो किस में यूज़ होगा, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इरीगेशन स्कीम, ठीक है, और अदर डेवलपमेंट वर्क्स विच इज़ जनरल लीड टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की वेल्थ को बढ़ाएगा। नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल। अब क्या करना है, पीपल की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा। वो कैसे बढ़ाएगा, इन द रीजन वेयर इरीगेशन फैसिलिटी आर अवेलेबल द वैल्यू ऑफ लैंड इज़ इंक्रीज, ठीक है। जैसे कि कोई ज़मींदार है तो उसकी ज़मीन वहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल है, सो वो कैसे पॉसिबल होगा, इरीगेशन से। तो वो लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो ड्यू टू द ग्रोइंग ऑफ 2 और 3 क्रॉप्स, ग्रोइंग कैश क्रॉप, ठीक है, वो पर ईयर में 2 या 3 पाक ग्रोइंग करेगा, एट दैट टाइम उसका कैश बेनिफिट होगा। सो इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ क्रॉप, द जनरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मर इज इंक्रीज। सो जो फार्मर की प्रॉस्पेरिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो it is benefit of irrigation. So next, generation of hydroelectric power. So major river valley project are usually planned to provide hydroelectric power together with irrigation. चलो अब क्या करना है, हमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना है। सो जो मेजर रिवर वैले है, जैसे कि कोई रिवर है कि सारदा कैनाल इन उत्तर प्रदेश, गंगा इन उत्तर प्रदेश, जो कैनाल पास होगी वो क्या करेगा, यूजुअली किसके लिए प्लान किया गया है, टू प्रोवाइड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लस इरिगेशन, ठीक है, पावर भी जनरेट करेगा प्लस इरिगेशन के लिए भी सूटेबल होगा। सो जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इज ऑल्सो पॉसिबल एट अ फॉल ऑफ द इरिगेशन कैनाल। जैसे कि कैनाल हेड है, वहाँ पे क्या होगा, वाटरफॉल होगा, तो हम जहाँ पे वाटरफॉल होगा वहाँ टरबाइन रख के हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं, एज वेल एज इरीगेशन के लिए भी वाटर सूटेबल रहेगा। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि गंगा एंड सरदा कैनाल इन उत्तर प्रदेश, वी आर हैविंग अ जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट 80,000 किलोवाट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। सो इट इज़ अ बेनिफिट ऑफ इरीगेशन। नाउ नेक्स्ट इज domestic and industrial water supply. The irrigation canal may also be utilized for domestic and industrial water for the nearby areas where the no source of water supply exists. जैसे कि कोई इंडस्ट्री है लोकेटेड, कई एरिया पे लोकेटेड है, तो वहाँ पे पानी की कमी होगी, तो एट दैट टाइम हमें क्या करना है कि इरिगेशन से वो पानी फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। द कैनाल आर ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर बाथिंग, कैटल वाटरिंग, देन बोटिंग एंड स्विमिंग एंड अदर रिक्रिएटमेंट। और कैनाल भी ऑब्वियसली किसके लिए यूज़ होगा, जैसे कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, बाथिंग, कैटल वाटरिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग के लिए सूटेबल होगा। देन inland navigation, the network of irrigation canal also be used for inland navigation and thus transportation of agriculture product to the मंडीज। जैसे कि कैनाल का हमें पता होगा, ठीक है, कैनाल का रूट पता होगा कहाँ से कहाँ तक पहुँची है, तो इस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर नेविगेशन सिस्टम। हमें कहाँ पे पहुँचाना है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट पहुँचाना है और लाना है, तो उसके लिए हमें सूटेबल रहेगा। देन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, जनरली ऑल द इरीगेशन कैनाल आर प्रोवाइडेड विथ इंस्पेक्शन रोड, ठीक है। अब नॉर्मली क्या हो गया कि कैनाल के अराउंड में रोड प्रोवाइड किया गया है। सो इट इज़ सूटेबल फॉर इंस्पेक्शन और रोड, ठीक है। वन ऑफ द बैंक ऑफ द कैनाल, द रोड आर कैन बी वाटर बाउंड मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड गुड कम्युनिकेशन फॉर सराउंडिंग विलेज। जैसे कि कैनाल के बाजू में जो रोड प्रोवाइड किया गया है, तो उसके लिए हमें तो उसके आसपास के जो एरिया है उसका इंस्पेक्शन इजीली रहेगा, ठीक है। देन कैनाल का इंस्पेक्शन भी बेटर रहेगा। देन नेक्स्ट, कैनाल प्लांटेशन, द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द कैनाल बैंक एंड ऑल्सो इन एनी ओपन लैंड अवेलेबल नियर द कैनाल। दिस ट्रीज वुड प्रोवाइड टिम्बर एंड ऑल्सो चेक सॉइल इरोजन, ठीक है।
अब क्या करना है, कैनाल के आसपास की जो एरिया है वहाँ हमें क्या करना है, ट्रीज़ प्लांट करना है, उसको उगाना है। दैन उसके आजू बाजू का एरिया है जो गवर्नमेंट होल्डर है, तो उसके हमें क्या करना है, ट्री प्लांट करना है। ठीक है, तो वो ट्री किसके फ्यूचर में क्या काम आएगा, टिम्बर के लिए, और ऑल्सो सूटेबल फॉर सॉइल इरोजन के लिए बेनिफिट रहेगा। दैन इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज in the area where irrigation facility are introduced, the groundwater storage is increased and the groundwater table rises. Obviously कैनल पास होगी तो जो वाटर टेबल होगा, ग्राउंड वाटर टेबल ऑब्वियसली बढ़ेगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दी सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कैनाल में से पानी का सीपेज होगा, एंड वो कैनाल एंड एग्रीकल्चर पीक द इंक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी एक्सपोर्टेड बाई वेरियस पर्पज़। ठीक है, ग्राउंड वाटर हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। दैन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जैसे कि वो प्रीवियस में लिखा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा तो वो कंट्री को डेवलप करेगा। ठीक है, जैसे कि कोई स्कीम आएगी इरिगेशन में उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, एज वेल एज कोई न्यू डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे रेवेन्यू। सो सेम एज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द प्रोविजन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। The supply of irrigation water leads to improve agriculture pattern, increase crop yield and increase employment. This may bring about significant changes in the social and economic pattern to the society due to the increase in the agriculture revenue of the state and due to rise in the living standard of the people. School, hospital and other facilities are available. So last is aid of civilization. So irrigation scheme are helpful in bringing civilization to the area through prosperity due to introduction of irrigation scheme. Even the violent and uncivilized tribes stick to farming and settle peacefully. So this is the benefit of irrigation. So first is increase in crop yield, second protection from famine, cultivation of cash crop, elimination of mixed cropping, increase in the wealth of the country, increase in prosperity of people, generation of hydroelectric power, domestic and industrial water supply, inland navigation, communication facilities, canal plantation, increase in groundwater storage and overall development of country, and last is aid of civilization.